Como no mete uma cita, não me mete com pardinharita, não me bata de palita, não me mete com tapa. We use this term, the music or music, so vaguely, and sometimes many people would say that music is halal or haram. ये जो है म्यूजिक की प्रैक्टिस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. We must have heard many times that music is the feast of the soul, music रूह की ग़िज़ा है. और म्यूजिक जो है, as Karl Marx had put out really well, the mirror of the reality. Hazrat Amir Khusro said music was the fire that burned heart and soul. तो म्यूजिक को समझने के लिए there are two disciplines which are very important. First of all, for us to understand, one is called musicology, which is the scientific study of the music and musical grammar, and another one is ethnomusicology, which I have studied. Okay, and in ethnomusicology is the studying music from outside in and from inside out. So anything which is related to the sound, faith, you have of course, the social, economical, and many other factors which comes in as part of the music. It is also important to first distinguish between what is the difference between sound, noise, and music. To me, music is a specific notation which is designed in a form to be produced creatively. That could not only just be dependent on the vocals. That could also be the amalgamation of instruments along with it. And to me, sound is just a form of energy that can be heard and sometimes not heard. And noise is basically a distortion in sound which is not pleasing to our ears. Excellent, Sohail. In terms of definition, music is an organized sound and noise is an unorganized sound. अगर आप साउंड को ऑर्गेनाइज कर देंगे एक पैटर्न के अंदर, तो विच इज कॉल्ड म्यूजिक. ओके, और अगर साउंड ऑर्गेनाइज नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड है, तो वो नॉइज बन जाएगा. You are absolutely right. Music, if you look at the historical understanding of music, in the Indian tradition, which is said that everything came out from Om, the sound of Om. In the Muslim context, we use in the text of the Quran, the holy book of God, everything was formed when God said kun, again sound. Yeah. When the first revelation was received by the Prophet Muhammad, it was not a written language. It was the sound. Ikra, read. Kira, sound. Okay. So we need to understand this concept of music. How often we use the word music. Music haram है, music halal है. ये आइडिया जो म्यूजिक का है, जिस तरीके से हम यूज और अब्यूज करते हैं, it was not even coined during the time of Prophet Muhammad. Okay. So where does this idea of music come from? Okay. In Greek, they had myths. They had the mythology of 9 goddesses. Okay. And those goddesses were the goddesses of arts and music. Similar idea one can see in Hindu literature. You have Saraswati, which is the goddesses of knowledge. And when Arabic literature during the time of 10th, 11th century was translated from Greek to Arabic, these terminologies originates from, of course, Greek, and it means muse, something which can inspire you immediately. Transfer from Greek to Latin and from Latin to European language as well as Arabic language. For me, when we use the term music, of course, during the time of Prophet Muhammad, other words were used, such as gina. Gina means singing, takbir, raising the voice, and some other terms which I will be showing you later. But for me, as a musicologist or ethnomusicologist, if I'm defining the structure of music, there are 4 elements which define anything to be music. First, rhythm and meter, tempo, and I'm sure Sohail will
agree with me here. The second is the pitch, melody and harmony. The third is the dynamics, loudness and softness. And the fourth is form and sonic quality, timbre, texture, color. So anything if you hear, for example, Prophet Muhammad peace be upon him had said कि बिलाल हबशी के गले में दाऊद की आवाज है. ठीक है? Anything which is organized sound wise can be called music. हम जो अजान सुनते हैं या हम कुरानिक रिसाइटेशन सुनते हैं या जिक्र करते हैं, उस जिक्र के अंदर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह एक रिदम है, एक डायनामिक्स है, एक फॉर्म, एक सोनिक है. तो वी नीड टू रियली कम आउट ऑफ box thinking where we have a very limited understanding of music. Even if a person is singing, हम कहते हैं कि सोज में गाना, तरन्नुम में पढ़ना, all of these things fall under the category of music. So इनको तो हमने मतलब एज म्यूजिक डिफाइन कर दिया कि इसकी डेफिनेशन ये है, बट एक हमारे पास ये हो गई कॉमन डेफिनेशन ना, जो हम देख रहे हैं म्यूजिक की किस तरीके से फॉर्म हुई 13th सेंचुरी में, ये कॉइन हुआ और थ्रू आउट हिस्ट्री, और फिर हमने स्ट्रक्चर भी देखा म्यूजिक का क्या क्या बनता है. सो इसके ऊपर अगर मैं बिल्ड ऑन करूँ कि ये मेरे पास एक कॉमन मैं कहूँगा डोमेन आ गया समझने का कि म्यूजिक है क्या, उसके अंदर क्या क्या आता है, और जब मैं इसको लोकेट करूँ जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है, ठीक है, और हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है इट्स फुल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस. ठीक है, उसमें हमारे पास एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं आता, क्योंकि हमने जैसे जैसे हम फर्दर सिविलाइजेशन में डेवलप हुए, हमारे पास डायनेस्टीज बनी थी, हमारे पास डिफरेंट रूलर्स आए थे, हमने डिफरेंट एरियाज कैप्चर किए थे, सो उनके कल्चर से हमारा इंटरेक्शन हुआ था. सो वो इंटरेक्शन जब हमारा हुआ, जब ये म्यूजिक की डेफिनेशन हम देखते हैं और जब हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप होना शुरू हुए, सो वो कौन से रेफरेंसेस को यूज करते हैं टू डिफाइन म्यूजिक, मतलब सोर्सेज जो हमारे इस्लामिक सोर्सेज है, कुरान हो गई, हदीस हो गई, या उनके अपने जो फाउंडर्स हैं उनकी साइंस हो गई. तो जो अर्लियर सोर्सेज हैं जिसके थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन कौन से जो है जो सिंफ हैं, जो असनाफ हैं, जो म्यूजिक की अकसाम हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैव ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंचुरीज टू सेंचुरीज. We need to understand, of course, during the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, poetry played a very important role. Qasidas were written at that time. And then if you go to 10th century, we have scholars such as Al-Farabi, who wrote a book which is a very popular book of Arabic music. And many of the ideas from the Arabic music has also translated into the English music as well. Today, if we have Dore, C, D, E, F, the musical notation the way we have, those have been taken from the Arabic notations, which were created by some of these Muslim musicians. Al-Farabi wrote a book called The Great Book of Music, Kitab al-Musiq al-Kabira, जिसमें उन्होंने जो है वो different types of music का जिक्र किया, और म्यूजिक एंड हीलिंग पर भी उसमें एक चैप्टर है. And not only that, Al-Farabi himself was a great musician and philosopher. He created qanun, which is called santoor, zita. And if you look at the piano, those who play key instrument, and I'm sure Suhail will also witness this, if you, अगर आप piano को open करेंगे back से, तो you will see many strings. And उसके अंदर जो है वो, आप जो है वो, strings are strummed by the sticks when you play the original piano. So the whole idea of piano was developed on the basis of rule, which was developed by Ibn Arabi in 10th century. Interestingly, now if you look at rubab, for example, which is very popular in Central Asia, kamanchi, okay, or you again see the violin, which we call it Western instrument. The forefather of violin is kamanchi, which also comes from the Muslim lands. Okay, so one has to, of course, understand the historical context that Muslims have also, in the past, not only have developed different kinds of music, but also contributed a lot in the understanding of Muslim cultures and civilization. If you look at, for example,
Persia or South Asia, many Sufi mystics, if you read a book called Mystical Dimension of Islam by Anne-Marie Shimmer, you would know कि साउथ एशिया में जो इस्लाम फैला है उसमें बहुत बड़ा रोल सूफियों का रहा है। ओके, उसमें चाहे वो बाबा बुल्ले शाह हो, सच्चे सरमस्त हो, बाबा फरीद हो या इस्माइली पीर शम्स हो, उन्होंने गाकर नाच कर जो इस्लाम की दावत की। तो म्यूजिक itself is not like, I'm not comfortable with the term haram, which is very, very, very strong. I think we need to come out of this, and there is a very clear guidance on the Quran, what is permitted and what is not. We will come back to this idea of what is permitted or what is haram and halal as per the teachings of the Quran later. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पर जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड जो है वो आपको लोगों के परसेप्शंस मिलेंगे रिगार्डिंग म्यूजिक। आई वोंट से कि टोटली नेगेटिव परसेप्शन ही है हमारी सोसाइटी में। इट्स ग्रेजुअली चेंजिंग नाउ, ठीक है। जिस तरीके से मैं खुद जो है वो जो ड्रम सर्कल्स और म्यूजिक थेरेपी की सेशन जो करवाता हूँ, वी हैव बीन डूइंग दैट सिंस 2013। तो हमने खुद जो है वो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज जो है वो देखा है लोगों के परसेप्शंस में, जिसमें जो है वो नेगेटिव परसेप्शन भी थे, पॉजिटिव भी थे। तो हमें जो है वो बेसिकली इस परसेप्शन को चेंज करना या इसके बारे में क्वेश्चन करना, आई गेस वी आर नॉट द वंस टू डू दैट, बट या वी कैन डेफिनेटली help you, or we can definitely try to enlighten the brighter side of this, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बेसिकली अनफॉर्चुनेटली म्यूजिक को जिस तरीके से देखा जाता है, आई गेस वो जिस चीज को देख रहे हैं वो म्यूजिक है ही नहीं। जिस चीज को वो कह रहे हैं कि वो बुरा है, क्या पता वो म्यूजिक ना हो, क्या पता म्यूजिक उससे बहुत बियॉन्ड है। तो जिससे कि अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, म्यूजिक इज लाइक, to me music is life, to me music is a source of communication, to me music is a source of connection with God, with Almighty, because देखें जिस तरीके से आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर हम पास में जाएं, ठीक है, तो जब बॉम्ब्स इन्वेंट किए गए थे तो उनका प्राइमरी पर्पस क्या था? उनका प्राइमरी पर्पस था कि वो जो है वो उसके थ्रू माउंटेन्स को एक्सप्लोर करके नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से, ठीक है। ये उसका प्राइमरी पर्पस था। लेकिन ऑब्वियसली जब एक इन्वेंशन आ गई है और जब वो लोगों के ये आम होती जाती है, तो लोग उसको अपने हिसाब से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आज वही बॉम्ब जो है वो लोगों को जो है वो मारने में भी काम आ रहा है, वो वॉर्स में भी काम आ रहा है, ठीक है। तो ये यूजेज जो है इसकी वजह से उसको इन्वेंट ही किया गया था। हियरिंग माय पॉइंट। तो म्यूजिक मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है कि म्यूजिक के आप क्वेश्चन करते हो, हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव है, इट्स अबाउट द यूजेज, बट दैट डजंट मीन कि आप जो है वो नेगेटिव इमेज के साथ जो है वो म्यूजिक को पूरे तरीके से एसोसिएट कर देंगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है उस म्यूजिक से हील होते हुए। मैंने अपने आप को बहुत मरतबा इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया, जिसके थ्रू जो है वो म्यूजिक के थ्रू मैं जो है वो अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस या अपने डिप्रेशन से बाहर आया हूँ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम जो है जब किसी की सालगिरह होती है, बर्थडे होती है, तो हम हैप्पी बर्थडे गाकर बोलते हैं, ठीक है। क्या कभी आपको वो हैप्पी बर्थडे बोलते हुए ऐसा हुआ कि आपके फेस पे स्माइल ना आई हो, या आप रो रहे हो, या आपको बहुत दुख हो रहा हो गाते हुए? नहीं होता, राइट? क्योंकि उसकी जो मेलोडी है, उसकी जो नोटेशन है, वो एक्सप्रेस ही हैप्पीनेस को करती है। तो बिल्कुल वैसे ही जो है म्यूजिक के अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो कि नेगेटिव कॉनोटेशंस को भी जो है वो एक्सप्रेस करती है। हम सिर्फ अगर उसी को लेकर बैठ जाएंगे कि यार ये म्यूजिक है और ये जो है वो हमें जो है वो गुमराह कर रहा होता है, तो नहीं, सॉरी बॉस, म्यूजिक की दूसरी साइड्स भी हैं। हम क्यों नेगेटिव साइड को ही एक जनरलाइज्ड साइड कह रहे हैं म्यूजिक की? तो अब जो है वो सोसाइटी के अंदर में आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस आ रही है। आज देखें, आप मैं सीधी सी एग्जांपल दूं, आज हम एक लाइव सेशन कर रहे थे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। क्या आज से 3-4 साल पहले हमने देखा था ये? हम शायद इसको इतना जो है वो एक सोशल टैबू कंसीडर करते थे कि हम इस पर बात करने से भी डरते थे। तो चेंज आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है। अभी इस सेशन के बाद आई एम श्योर, मैं काफी ज्यादा ब्लंट बोलता हूँ, इस सेशन के बाद जो है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डायलॉग आएंगे आपके पास
कि ये तो हराम है और ये वैसा है, और वो उनका राइट है बोलना, दे कैन स्पीक दे हार्ट आउट, वो जो भी चाहते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन जब तक बताएंगे नहीं, एनलाइटन नहीं करेंगे, तो वो अगर वो परसेप्शन गलत है तो वो सही में कैसे कन्वर्ट होगा? बताना बहुत जरूरी है, एनलाइटन करना बहुत जरूरी है। तो ये सोशल मीडिया जब से आया है और जब से ये हर बंदे की फिंगर टिप्स पे है, आई बिलीव उसके बाद से परसेप्शन थोड़ा चेंज हो रहा है। हमारे पास ऐसे ऐसे जो है वो चीजें आ रही है सामने, जिसके बाद लोगों के परसेप्शन चेंज हो रहे हैं। आगे फर्दर ऑन हम इसमें मजीद डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हम जो है वो इस चीज पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों म्यूजिक हराम है। तो लेट्स मूव ऑन, एंड आई गेस हम आगे जाके मजीद एग्जांपल्स करीम भी इसके ऊपर कोट कर सकते हैं मजीद आगे जाके कि हाँ, इट्स नॉट अबाउट म्यूजिक हलाल एंड हराम वाली थिंग, ठीक है, इट्स अबाउट इट्स यूजेज। अगर गलत यूज करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। नाम रख ले वो लोग जो थोड़ा सा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहते हैं म्यूजिक को, तो आई वुड रेफर टू दिस बुक कॉल्ड इस्लाम और मौसीकी बाय मौलाना खुलवारी। बहुत खूबसूरत किताब है, उसके अंदर दोनों कॉन्टेक्स्ट को बहुत ही डिटेल में जो है वो बताया गया है। और अगर इफ यू वुड लाइक टू रीड इन इंग्लिश, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक व्हिच इज कॉल्ड म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। Okay, so let's discuss this. Okay, there are two ideas, and I completely agree with Suhail and Sahel. We need to first unpack those two ideas. Okay, one is halal and haram. So I have a slide which I will use for that. And second is the idea of course, Psalm. If you look at some of the, of course, Sufi literature, Qawwali or Ginam or Qasidas. Okay. The word qawwali comes from Arabic word which means call, recitation. Recitation of course, the recitation of the holy figures such as Hazrat Ali, Prophet Muhammad, and of course, ulma and of course your Pir Murshid. Then you have Kafi, which is Kafi, which means rhymes and hymns. And then you have Ginan. The word Ginan comes from Sanskrit, which means Janana, wisdom, or Gana. We always sing Gina, although we use the word recitation within the Muslim context, but we never read the Gina. We always sing out, sing aloud the Gina. So this idea of music, especially within the Muslim context, Sahad, you are absolutely right that the book which was revealed to Prophet David was the book of music. And not only that, we have many anecdotes during the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, where he is told, Bibi Khatija, for example, हम अंसार के पास जा रहे हैं, तुम्हें पता है अंसार मौसीकी के रसिया है, क्या तुमने गाने वालियों का भी बंदोबस्त किया है? ठीक है, अब ये जितने भी कॉन्टेक्स्ट में आपको दे रहा हूँ ये इनकी फेवर में है. Now let's flip the coin and look at the other side. So there are two anecdotes. I would again quote one of the ayats from the Quran and also from Hadith. What is allowed and what is not allowed. Okay? क्या halal है और क्या haram. It comes from Surah Al-Araf, ayat number 33, the translation from Yusuf Ali, which is very clearly written what is halal and what is haram. And this applies to all the Muslims across the world. Say the things that my Lord hath indeed forbidden are shameful deeds, whether open or secret, sins and trespasses against truth or reason, assigning of partners to Allah subhanahu wa ta'ala, for which he had given no authority, and the last one, saying things about Allah of which he had no knowledge better. So if you look at this ayat very clearly, and within the even Quranic discourse, never you would find any ayat singularly pointing out to the concept of music. In fact, अल्लाह के 99 नामों में से अल-समी है, जो सुनता है, ज़ाकिर है, जिसका जिक्र किया जाता है. ओके, तत्मईनुल कुलूब इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल कुलूब, और अल्लाह को
जो है वो अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों से याद करो, और वो दिलों को पाक करता है। अल्लाह का जिक्र हमारे दिलों को पाक करता है, ठीक है। तो जब हम हराम और हलाल की बात करते हैं, तो we don't really need to jump over to some of these ideas without understanding what is clearly given in the context of the Quran. Okay, अगर ये element, for example, shameful deeds, if you bring the shameful deeds into your music, as Suhail has mentioned, okay, music is the medium. If your music is taking you away from your faith, and it is, of course, taking you to the path which is not the path of Allah, then you would say definitely that poetry or that music would be considered haram. But in the similar context, if you are hearing a music which is taking you towards the path of Allah, okay, if you are hearing Rumi, if you are hearing, for example, Sachal Sarmat, or if you are hearing even Shah Abdul Latif Bidai, his entire book was based on 30 surahs, ragas. And if you go to Sindh, for example, after the Quran and Hadith, people have really a lot of respect for the poems of Shah Abdul Latif Bidai. So it is the context in which people can say what is halal and what is haram. If you are hearing a song which can take you away from the authority of God, from the oneness of God, definitely that is haram. ये भी बहुत important दो quotation है. Those who are in favor of कि भाई music haram है, usually quote these two very important anecdotes. One comes from Quran, Surah Luqman, okay, ayah number Surah 31, ayah number 31, verse number 6. End of the people is he who buys the amusement of speech to mislead from the way of Allah without knowledge, and who takes it in ridicule. Those will have a humiliating punishment. अगर आप इस कुरानिक आयत को देखें सूरह लुकमान को, तो यहाँ पर लोग स्पीच टू मिसलीड के बाद कॉमा में डालते हैं पोइट्री, म्यूजिक और वो तमाम चीजें जो हमें हमारे मजहब से दूर ले जाती हैं। हालांकि इनडायरेक्टली यहाँ पर स्पीच टू मिसलीड कैन बी अ पोम, कैन बी अ खुतबा, कैन बी एनीथिंग, but of course it is open for the interpretation, and many thoughts, especially which are geared towards the I would say the conservative understanding of Muslim thought, would definitely interpret that speech to mislead also include music. Now let's go back to the Hadith tradition. This is Bukhari, volume 7, book 69. उसके अंदर जो है वो अबू मालिक अल अशरी से ये नरेट है कि द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है और जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं. आई थिंक इट आल्सो सपोर्ट्स व्हाट सुहेल हैज जस्ट सेड. इन दिस उम्मा देयर विल बी पनिशमेंट ऑफ कशफ, earthquakes, qazaf, showers of stone, when the people will be involved in drinking, listening to female singers, and playing music or musical instruments. Now, there are, of course, a lot of writers who have discussed this in detail. We need to understand the context, not only history, but the context. Okay, and one can easily understand that Prophet Muhammad, peace be upon him, is emphasizing on the music where people are going away from the teachings of Islam, from the ethics of Islam. Okay. And he's talking about certain kind of musical instruments, perhaps in the era of Jahiliyyah. Okay, there were dancers, there were musicians who had caravans of music, and they were going from places to places. And of course, they were also somehow exposing the nature of Jahiliyyah, not the teachings of Islam. Okay, so indirectly, people can interpret this hadith that Prophet Muhammad, peace be upon him, is trying for his, of course, ummah to stay away from those habits, ethical habits, which can take you away from the path of
सुबह निकाल। बट सर अगर मैं इसी हदीस को ले लूं और अगर मैं आयत्स को भी ले लूं, सो आज कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, सो क्या नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा म्यूजिक के डोमेन का अगर मैं वो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता? ये बहुत अच्छा सवाल किया जुनेद। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, मैं इसी पर आ रहा हूँ कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू लुक एट द लिटरेचर। ओके, there is a historical context, there is a cultural interpretation, there is a civilization approach. Okay, exactly. So it is extremely important for anyone. Okay, regardless of, असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और many other countries where you have majority of one followers of any faith, हम कभी कभार जो है वो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर जो है ना वो हम फैसला कर देते हैं सही और गलत के बीच, सफेद और काले के बीच। ये बहुत जरूरी है कि हम उसके डीपर कॉन्टेक्स्ट को समझें। एंड इवन देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नो लाइक फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी बुक है द आर्ट ऑफ रिसाइटिंग द कुरान। ओके, आई वुड हाईली रेकमेंड पीपल टू रीड दिस बुक। ये क्रिस्टीना नेल्सन ने लिखी है ये बुक। इसके अंदर उन्होंने जो है उम्मे कुलसूम का जो है ना वो एग्जाम्पल दिया। उम्मे कुलसूम 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी म्यूजिशियन कंसीडर की जाती है मिडिल ईस्ट के अंदर। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हर ट्रेनिंग वाज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द कुरान, ऑन द रिसाइटेशन टीचिंग ऑफ द कुरान। और अपनी मिडिल ईस्ट के अंदर पक्का म्यूजिशियन या पक्का सिंगर उसको माना जाता है जिसको सारे कोनोटेशन जो हमारे सही गानों के तलफ़ुज़ हैं, अगर उसको कुरान अच्छे तरीके से हिफ्ज़ ना हो तो समझा जाता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो म्यूजिक की जो है वो उस लेवल पर नहीं है। और इस बुक के अंदर क्रिस्टीना नेल्सन ने डिफरेंट काइंड ऑफ रिसाइटेशन पर बात की है। और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि हजरत उमर इस्लाम किस तरह लाए। हजरत उमर तलवार उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए जा रहे थे। किसी ने कहा कि हुजूर को मारने से पहले देख लो कि तुम्हारे घर में क्या हो। वो उल्टे मुंह अपने घर की तरफ गए और दरवाजे पर गए और देखा कि वहां पर उनकी जो सिस्टर है वो बड़ी आवाज में जो है वो कुरान की तिलावत करे। और जब उन्होंने वो तिलावत सुनी, जो सोच सुना, वो आवाज सुनी, वो किरा सुना, तो वो इस्लाम ले आए। तो जो इसका जो मूविंग फीलिंग है कुरान की रिसाइटेशन की, अज़ान की, वो ही है जिसने 1400 सालों से इस्लाम को जिंदा रखा। So here, can you shed some light upon the therapeutic form of music, how it actually works? Okay, so मुझे कुछ चीजें पॉइंटर्स कुछ ऐड करने थे जो करीम ने यहाँ पर बताया रिगार्डिंग हलाल एंड हराम, जो कि उन्होंने सारे जो है वो यू कैन से उन्होंने कुछ प्रूफ्स हमें निकाल कर दिखाए हैं कि जिसपे जो है वो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि म्यूजिक हराम है तो ये कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट है जिसपे हम जो है वो उसको रिविजिट कर सकते हैं कि वेदर म्यूजिक इज हराम और नॉट। तो मेरे जो कुछ पर्सनल जो पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको मैं जो समझता हूँ, जिसको हम बहुत ज्यादा उसके पर फोकस करने की जरूरत है, वो ये कि आप कुछ चीजों को, जिसमें हमने स्टार्ट में पहले डेफिनेशंस डिस्कस की थी, साउंड की, नॉइस की, म्यूजिक की, ठीक है। आपको पता है, एक बात बताऊं, अक्सर हम कहते हैं कि एक रूम के अंदर अगर हम बंद है, ठीक है, और फैन भी ऑफ है और रूम में कोई भी नहीं है, ठीक है, तो हम कहते हैं साइलेंस है, ठीक है। उसमें हम एक बहुत गलत टर्मिनोलॉजी कभी कभार यूज करते हैं जिसका हमें आइडिया ही नहीं। हम कभी कहते हैं देयर इज नो साउंड, देयर इज नो सच थिंग एज नो साउंड। आप कभी कभार अगर आप किसी फिल्म डायरेक्टर को जानते हो या किसी को भी जानते हो, जब वो लोग किसी शूट पर जाते हैं ना, तो अगर वो किसी एम्प्टी रूम के अंदर में भी शूट करने वाले होते हैं ना, तो वो उस एम्प्टी रूम के अंदर भी माइक लगा के रिकॉर्डिंग करते हैं। वो क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं पता है? वो एम्बियंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं।
देयर इज नो सच थिंग एज एब्सेंस ऑफ साउंड, इट्स एवरीवेयर। आपको एक बहुत दूसरी मजे क्या बताता हूँ मैं, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो कैसे हो रहा है आपको पता है? साउंड से हो रहा है। कभी आपके साथ अगर ऐसा इत्तेफाक हुआ हो कि आपका एक एयर जो है वो थोड़ा सा उसमें जो है वो अगर कचरा आ गया है, उसमें आपको आवाज कम आ रही है, आप कभी नोटिस कीजिएगा आपका पूरा बैलेंस आउट हो जाता है। अगर आप कहीं पर चल के जा रहे हैं, आपको उस चलने में भी तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि आपको जो है वो 360 जो है वो एक मॉनिटरिंग हो रही है थ्रू साउंड कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर वो मॉनिटरिंग में थोड़ा सा भी इश्यू आ जाता है तो आपका जो है पूरी बॉडी का बैलेंस आउट हो जाएगा। आपके एयर्स जो है वो बैलेंस ही साउंड से हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी बैलेंस साउंड से हो रही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके अंदर जो है वो एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जो कि आपको मेट्रोनोम देता है, विच इज योर हार्ट। ठीक है, आपकी एग्जिस्टेंस ही उसके ऊपर है। जिस दिन वो मेट्रोनोम, जिस दिन वो टेम्पो बंद हो गया, यू बी कंसिडर्ड एज डेड। आपका दिल अगर धड़कना बंद हो गया तो आप डेड हो गए। तो अगर आपको जो है वो साउंड के साथ आपको इतनी तरीकों से अगर जो है वो एसोसिएट किया गया है, तो मेरा सवाल है क्या वो चीज हराम हो सकती है? आप जो डेली अजान सुनते हैं वो आपको पता है वो राग भैरवी के अंदर है। तो एक इतनी जो है वो एक प्रेशियस चीज जिसके थ्रू जो है वो लोगों को जो है वो रागिब किया जाता है कि नमाज पढ़ने चले, इट्स टाइम टू बी कनेक्टेड विद योर गॉड, उसको भी राग में डिजाइन किया गया है। हम कभी कभार जो है वो कुछ अजान सुन के जो है वो बिल्कुल ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई वाज स्टडीइंग फिल्म मेकिंग इन इस्तांबुल। आप यकीन माने जब मैं ब्लू मॉस्क गया था और जब मैंने अजान सुनी थी, आई वाज क्राइंग देयर, लिटरली आई वाज क्राइंग एंड आई हैड नो रीजन। मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा था कि मैं क्यों रो रहा हूँ, बस मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत तरीके से पढ़ रहे थे अजान को, रिसाइट कर रहे थे कि मतलब मुझे नेचुरली रोना आ गया। तो एक चीज जो इतनी पावरफुल है उस पर आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? गेटिंग माय पॉइंट। सेकेंडली, अगेन इसी का लिंक मैं करूंगा कि थेरेपी में कैसे काम आता है। देखिए पर्सनली मुझे जो इसका आइडिया मिला, कभी कभार हम लाइफ में कुछ चीजें ऐसी करते हैं जिसकी हमें टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती है। ठीक है, इस तरीके से मेरे साथ हुआ। मैं बचपन से, मेरे पास इंस्पिरेशन कैसा आई थी म्यूजिक की, मैं जो है वो स्कूल के अंदर, मैं घर पे बैठ के जो है वो बर्तन बजाता था, अपने डेस्क के ऊपर जो है वो बीट्स बजाता था, रिदम्स बजाता था, और वो मुझे खुशी का एलिमेंट देती थी, मैं खुश होता था उससे। और मुझे कई सालों तक पता ही नहीं लगा कि यार ये हो क्या रहा है, मेरे लिए सिर्फ वो एक्टिविटी थी, दैट्स इट। मतलब मुझे इसका कोई सेंस ही नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो चीज नेचुरली मुझसे हो रही थी। फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता जब मैं चीजों को स्टडी किया, जब मैंने म्यूजिक को परफॉर्मेंस एज अ परफॉर्मिंग आर्ट्स मैंने जब उसको अडेप्ट किया, तब मुझे पता लगा कि अच्छा मैं बचपन से थेरेपी कर रहा था और मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो उससे खुशी मिल रही थी। चाहे मैं दुख में हूँ, चाहे मैं किसी भी जोन में हूँ, तो मैं नेचुरली वो काम करना शुरू कर देता था। जैसे एग्जाम्पल, तो मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास में एक लेक्चर मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, तो मैं बैठ के जब हल्के हल्के जब वो अपने या तो पैर पे जब वो टैपिंग करता था या टेबल पे बजा रहा होता था। अब इसके ऊपर दूसरा सवाल भी है कि तुम क्लास में ध्यान नहीं देते, तुमने लेसन को वो जरा अटेंड नहीं करके जो है वो ड्रमिंग की है, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। ठीक है, बट या अगर मैं उस टाइम पे मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ या मुझे मजा नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं उस टाइम पे अपने आप को लेट गो कैसे कर रहा था, मैं एक आर्ट को परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, सेकेंडली आई एम श्योर करीम कुछ भी इसमें ऐड कर सकेंगे फर्दर ऑन, कि आजकल जो है वो म्यूजिक को लेकर जो है वो म्यूजिक सेंटर्स जो है वो हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट किए गए हैं। देयर इज दिस सीईओ ऑफ यामा सेंटर, डॉक्टर बैरी बिटमैन, वो जो है वो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिस्ट है। उन्होंने ये कहा है कि ड्रमिंग के थ्रू, ग्रुप ड्रमिंग जो हम करते हैं, जिसको हम ड्रम सर्कल भी कहते हैं, जो आज हम इंटरनेट पर बहुत कॉमनली देखते हैं, ये प्रैक्टिस है अफ्रीकन ए ट्राइब की, जो कि 70 इयर्स पहले से भी चली आ रही है। उसके थ्रू उन्होंने कहा कि हमने वंडर्स देखे हैं उन पेशेंट्स के अंदर में जो कि किसी भी किस्म की एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन के अंदर थे, दे हैव एक्सप्रेस्ड देमसेल्व्स, जो कि उससे बेहतर तरीके से कभी भी नहीं कर पाए थे। आप थोड़ा सा कंसिडर करें एक्चुअली होता क्या है। जब हम किसी मेंटली चैलेंज सिचुएशन के अंदर में होते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन, सबसे पहला सोल्यूशन है टू स्पीक आउट, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए हम बीमार होते हैं।
हमें जब बुखार होता है, ठीक है, तो वो एक्चुअली बुखार जो है वो कोई सिकनेस नहीं है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर आउट हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर में कुछ मसला चल रहा है इस वक्त। तो हम फौरन पैराडोल ले लेते हैं। जब हमें जो है वो इश्यू पता लग जाता है तो फिर हम उसके हिसाब से जो है वो कोई भी मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या कुछ भी हो। तो आपका जो भी मेंटली जो आपका इश्यू होता है, कुछ स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, इट हैज सम रूट कॉज जो कि हम अक्सर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, या उसको लेट गो नहीं कर पा रहे होते। ऐसे पॉइंट पे जो है वो म्यूजिक बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो एक आउटगो देता है कि आप जो है उस चीज को एक्सप्रेस कर पाए। हम अक्सर जो है वो एक डिप्रेसिंग जोन के अंदर में होते हैं, और आप में से मुझे यकीन है कि मोर देन 70 और 80% लोग जो है वो ये करते हैं कि यार अक्सर जो है वो अच्छा म्यूजिक सुनते, चलो यार मूड अच्छा हो जाएगा। वो क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक वे में आपको थेरेपी दे रहा है। हमें पता नहीं है, हम उसको जो है वो एज अ मेडिकली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बट वो ऑर्गेनिक थेरेपी होती है कि जब आप म्यूजिक सुनते हो आपका मूड अच्छा हो जाता है। आप कभी कोई बहुत ही शोर वाला म्यूजिक सुनते हो, आपका मूड खराब हो जाता है। जहां पर ये भी सवाल आ जाता है यार ये म्यूजिक हराम है, इसने मेरा मूड ही खराब कर दिया। और इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, आई एम नॉट लाइंग, ऐसी कम्युनिटीज है जो कि सैटेनिक मैसेजेस दे रही है। इसके ऊपर पूरे डिफरेंट डिबेट सेशन हो सकता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो डॉक्यूमेंटेड चीजें पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर कि कैसे म्यूजिक को जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में यूज किया जा रहा है टू ऑल्टर योर माइंड, टू ऑल्टर योर परसेप्शंस, टू गेट यू इनटू अ नेगेटिव जोन। तो अगर एक चीज का नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा डेफिनेटली। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो कि मैं इस सेशन की जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने जब मैं बैल्कनी में खड़ा हुआ था तो मैंने एक्सप्लोर की थी वो एग्जांपल। हम अक्सर जो है वो रात और दिन का जो है वो एग्जांपल दे रहे होते हैं डार्कनेस और ब्राइटनेस से, ठीक है, यार रात है ना, एक दिन सुबह भी आएगी, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया है, उस रात के अंदर में भी ब्राइटनेस है, लेकिन हम उसको जो है वो अपनी एविडेंट आंखों से देख नहीं पाते। अगर आप कभी किसी दिन बीच पे गए हो रात के टाइम पे, ठीक है, हम देखते ऊपर एक काला आसमान नजर आ रहा होता है अगर चांद नहीं है तो, ठीक है। अब साइंस ने क्या किया? साइंस ने इजाद किया कैमरा, और उस कैमरे के थ्रू जो है वो उन्होंने की एस्ट्रो फोटोग्राफी, इसके थ्रू जो है वो हमें मिल्की वे नजर आता है, और हम देखिए बोलते हैं वाह यार ये सितारे हैं और ये मिल्की वे तो हमें नजर ही नहीं आ रहा नॉर्मल आंखों से। तो यानी कि साइंस के थ्रू आप जो है वो उस डार्कनेस के अंदर में भी जो है वो मिल्की वे देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वैसे ही ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं, वो क्या आपको हेल्प नहीं कर सकती टू एक्सप्लोर द ब्राइटर साइड ऑफ म्यूजिक, जिसको हम जो है वो देख नहीं पा रहे होते नॉर्मली, जिसको नॉर्मली एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग एक कैंप करवाते थे, जुगनू कैंप, जिसके अंदर में जो है वो 7 to 13 ईयर्स के जो है वो बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, और उनको जो है वो हम बिसाइड नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, जिसमें साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, हम उनको जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर में जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़ाते थे, जिसके अंदर में पेंटिंग था, जिसके अंदर में म्यूजिक था, जिसके अंदर में आर्किटेक्चर था, जिसमें जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन था। ये सारे जो है मॉड्यूल्स पढ़ाते थे। उसके अंदर में फॉर्चुनेटली मैं जो है वो काफी टाइम से एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ। मैंने उस कैंप के अंदर में एज अ म्यूजिक फैसिलिटेटर, एज अ फिल्म मेकर और एज अ फोटोग्राफर काम किया। हमारा जो पहला कैंप था 2013 के अंदर में, उसमें मैंने एक वंडर देखा था, एंड लिटरली इट वाज अ वंडर। उसमें हुआ ये था कि उसमें हमारे पास एक पार्टिसिपेंट आया था हु हैज दिस ADHD, जिसको हम अगर आम जुबान में कहें तो उसके ब्रेन में कुछ थोड़ा सा केमिकली मसला था, और जिसमें जो है हम आम जुबान में लोग कहते हैं यार ये एबनॉर्मल है या स्पेशल है, ठीक है। सो ही हैड दिस कंडीशन ऑफ ADHD, और वो बच्चा जो है बहुत हाइपर था, बहुत ज्यादा हाइपर। जब हमारे पास वो फर्स्ट डे आया था कैंप के ऊपर, तो आई रिमेम्बर दिस डिस्कसिंग विद माय कलीग कि यार इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि वो जो है वो बात वक्त अब्यूजिव भी हो जाता था, और उसको जो है वो क्लासेस के अंदर में बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और वो कैंप हमारा 7 डेज का, तो 7 डेज जो है वो हमको वो मॉड्यूल्स पढ़ाते थे, डिफरेंट उसके जो है वो चैप्टर्स होते थे, और एंड में जो है वो उसके रिलेटेड उनकी कोई एक्टिविटी होती थी या कोई असाइनमेंट होता था। अब हुआ ये कि जब 1-2 दिन गुजरने लगे तो हमने जो है वो उस बच्चे के अंदर में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखा। वो चेंज ये देखा कि वो अब हमारे पास खुद भागता हुआ आता, वो कहता है कि मैं जो है ना वो सिर्फ म्यूजिक की क्लास में बैठूंगा, मैं सिर्फ आर्ट्स की क्लास में बैठूंगा, और मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की क्लास में बैठूंगा, दैट्स इट, और मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मतलब उसने बाकी मॉड्यूल्स को मना कर दिया, लेकिन उसने कौन से मॉड्यूल्स का इंतखाब किया? म्यूजिक, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। और उसके बाद से हमने उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज देखा
मतलब वो जो अब्यूज करता था उसे बंद कर दिया, वो टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, वो बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है, उनके साथ लंच शेयर कर रहा है। एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज, और हमें पता नहीं था उस टाइम तक कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमने जो है वो क्या होता है कि स्कैम के एंड में जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जिसके अंदर हम पूरा बताते हैं कि यार स्कैम के अंदर में क्या हुआ, हमने क्या डिलीवर किया, आपके बच्चे ने क्या सीखा, उसने कौन कौन से असाइनमेंट्स किए, वो सारा डिस्प्ले होता है। उस मीटिंग के एंड में हमने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है वो कॉर्नर में खड़े होकर रो रहे थे, और मैं और वही कलीग जिससे हमने डिस्कस किया था, हमने उनको देखा कि यार ये क्या सीन है और ऐसा क्यों हो रहा है। तब उनके पास गए उनसे मिलने के लिए, तो उस बच्चे का नाम था मुदस्सिर। हमने कहा कि आप लोग मुदस्सिर के पेरेंट्स हो ना? जी हम लोग मुदस्सिर के पेरेंट्स, हम यही वेट कर रहे थे कि आप लोग थोड़े से फारिग हो जाए तो हम आपसे बात कर सकें। तो उन्होंने हमसे एक चीज शेयर की कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि आप लोगों ने क्या किया और कैसे किया है, बट हमने अपनी पूरी लाइफ में उसको फर्स्ट टाइम जो है वो मुस्कुराते हुए देखा है, उसको इतना खुश देखा है। उसको हमने बहुत सारे कैंप्स में भेजने की कोशिश की, बहुत सारे एक्टिविटीज में भेजने की कोशिश की, वो भाग जाता था, लेकिन इस कैंप के लिए वो खुद अलार्म रखता था, वो खुद सुबह के तैयार होके ब्रेकफास्ट करके भागता था कि मुझे जुगनू कैंप पे जाना है। तो इससे बड़ी एग्जांपल मेरे लिए कोई भी नहीं थी कि म्यूजिक कैसे चेंज कर सकता है, कैसे हील कर सकता है किसी को, और कैसे किसी को थेरेपी दे सकता है। एंड प्रोबेबली शायद वही एक सोर्स था बेसिक जिससे हमें इंस्पिरेशन मिली कि नहीं यार, अब हम जो है वो इस चीज को जो है वो लोगों तक लेके जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट कैन हेल्प मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल। तो इसने मुझे ऐसे हेल्प किया, और आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग उसने हेल्प किया और करता रहेगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच सुहेल, एक्चुअली आपने बहुत अच्छी टिप दी है। अगर आगे हम लोग कैंप कराएंगे तो ऐसे बच्चों को संभालने के लिए बहुत अच्छी टिप है। Sohail, we really want you to show us कि हम लोग क्वारंटीन के दौरान विदाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम किस तरह से म्यूजिक थेरेपी कर सकते हैं घर पे। अच्छा, तो बहुत सारे मल्टीपल इसके वेज हैं जिसमें आप जो है वो खुद से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बेसिकली किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बजाय नीड नहीं है। आप जो है वो हाउस होल्ड आइटम से ही इसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली इफ यू फील कि इट्स हेल्पिंग मी आउट और इट्स समथिंग वेरी प्रोडक्टिव और मुझे इससे बहुत ज्यादा कुछ गेन हो रहा है, तो इवेंचुअली यू कैन मूव ऑन विद बाइंग एन इंस्ट्रूमेंट इफ यू थिंक कि हाँ यार मुझे जो है वो प्लेइंग में भी मजा आ रहा है, बट प्राइमरीली यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर दिस। अच्छा, मैंने जो है वो एक जो है यहाँ पर एक ये बॉटल क्रिएट की हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। ये ऐसी प्लास्टिक की बोतल आप सबके घर पे होगी जिसके अंदर मैंने जो है वो पल्सेस डाली हुई है, ठीक है। लेमन में बिल्कुल दालें, चना दाल जो होती है वो डाली हुई है इसके अंदर में। और मैंने जो है वो ये असाइनमेंट जो है वो सहर और जुनेद को भी दिया हुआ था। अब उनको पता लग गया कि असाइनमेंट क्यों मिला हुआ था, तो आप लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया हुआ अपने पास, तो आप प्लीज जरा कैमरे में दिखाएं। मेरे पास राइस है बॉटल में प्लास्टिक की, और मेरे पास पल्सेस है। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है कि आपको जो है पहले मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि एक हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं शेकर्स। ये बेसिकली इंस्पिरेशन है शेकर की। अब इसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जिस तरीके से ये बॉटल है जो कि हम इजीली बना सकते हैं घर के अंदर में, इसको हम देखें बहुत ही अमेजिंग वे में प्ले कर सकते हैं जो कि हमने शायद कभी सोचा नहीं होगा, बट लेट्स एक्सप्लोर दिस। ठीक है। अच्छा, अब म्यूजिक जो है वो उसका जो है वो मैथमेटिक्स से बहुत गहरा जो है वो लिंक है, ठीक है। म्यूजिक जो है वो इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इसके अंदर मैं काउंटिंग, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोगों को मैं जो है वो एक बेसिक काउंटिंग बताऊंगा जो कि आप लोगों को प्ले करनी है, विच इज 1 2 3 4। आपको हर नंबर पे जो है वो सिंगल टाइम स्ट्रोक करना है इसको ऐसे, ठीक है। अगर आप लोग अभी लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोग कुछ ऐसी चीज ग्रैब कर सकते हैं व्यूअर्स, तो आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। एल्स ये वीडियो अवेलेबल होगा आई एम श्योर, तो आप लोग जो है उस चीज को बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आप लोगों को मैं काउंट दे रहा हूँ 1 2 3 4 का, ठीक है। आपको जब लगे कि हाँ नाउ आई कैन प्ले विद इट, ठीक है, तो आप लोगों ने स्टार्ट करना है प्ले करना, ठीक है। पहले आप लोगों ने सुनना है और आपको जब लगे कि हाँ अब मैं प्ले कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ प्ले कीजिएगा।
फिर इवेंचुअली आप लोगों ने वो प्ले करते रहना है उसी टेम्पो पे, और मैं एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने वही प्ले करना है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। गुड। अब आप लोग जो है वो इसी टेम्पो पे प्ले करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक दूसरी चीज है, ये छोटी सी मटकी है, ऐसी भी लोगों के घर में आराम से आई गेस अवेलेबल होगी। इसकी आप कोई दूसरी फॉर्म भी ले सकते हैं, बट पार्ट इसके हम इसको भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक ग्रुप प्ले किया, इसको हम ग्रुप कह सकते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर में क्या किया कि हमने इंस्टेंटली प्रैक्टिस की, ठीक है, और आप लोगों ने जो है मुझे टेम्पो दिया शेकर के फॉर्म में, और मैंने जो है वो एक बहुत ही घर में इजीली अवेलेबल चीज को मैंने प्ले करके दिखाया। अब ऐसी आप कोई भी चीजें पिक कर सकते हैं अपने घर में से, कोई बर्तन पिक कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल कि वो जिस तरीके से अगेन जो करीम ने स्टार्ट में कहा था कि वो नॉइज में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है वो एक स्पेसिफिक काउंट के साथ बजा रहे हैं, और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो है वो आराम से आपको यूट्यूब पे इंटरनेट पे मौजूद मिलेंगी कि किस तरीके से बेसिक रिदम्स बजाए जा सकते हैं। अब जो आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आई कैन लिटरली टेल यू, जिस तरीके से हम जो है प्रॉपर ड्रम सर्कल भी करवाते हैं, जिसमें जो है वो ऑडियंस जो है वो ड्रम्स लेके बैठी हुई होती है। हमारा एक अपना प्रोडक्ट था ड्रम सर्कल का, जिसको हम कहते थे कचरा म्यूजिक, जिसमें जो है वो हम ऐसे वाटर कैंस और इन सब चीजों से जो है वो म्यूजिक बजाते थे। और हमने अक्सर देखा भी होगा, यूट्यूब पे वीडियोस आती है जिसमें स्पेशली अफ्रीकन पीपल जो है वो बिल्कुल ट्रैश आइटम से जो है वो ड्रम बीट्स बजा रहे होते हैं। तो आप जब इन सब चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, और आप जब घर पे कभी इसको कोशिश कीजिएगा, मेडिकली इट्स प्रूवन थिंग कि ये जो है वो आपकी बॉडी के अंदर में जो नेगेटिव एनर्जीज होती है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, कभी अगर आपको बहुत शदीद गुस्सा आ रहा हो तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी चीज को बैंग करते हैं, या तो आपने वार्डरोब पे जोर से हाथ मार दिया या टेबल पे हाथ मार दिया। बेसिकली वो क्या प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपका ब्रेन जो है वो एक ऑर्डर पास करता है आपकी बॉडी के अंदर में कि इस एनर्जी को रिलीज करो। तो हम जो रिलीज करते हैं वो स्ट्रोक के थ्रू करते हैं। तो व्हाई नॉट यूजिंग दो स्ट्रोक इन अ सिस्टमैटिक वे टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट? Is it music that deviates people, therefore it is considered haram, or is it people who makes meaning out of it? अच्छा सवाल है। किसी भी चीज को आपने, कोई भी चीज है, चाहे पोइट्री है या फनून लतीफा है, आर्ट्स है, या अगर आप ड्रामा है, एक्टिंग है, आप किसी भी चीज को लें, ठीक है, उसका जो एक्सेस है, आपका जो जुनून है, या उसका जो क्योंकि उसके अंदर एक रूह मौजूद है, ठीक है, तो वो अगर आप उसको अपनी रूह के साथ जोड़ कर रखें और कोशिश करें कि वो आपको डेविएट नहीं कर दे आपके प्रिंसिपल के साथ। जैसे मैंने आपको कुरान की आयत बताई थी जिसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है क्या हलाल है और क्या हराम। अगर आप जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो आपको आपके फेथ से, आपके सोल से, आपके ऑलमाइटी से जोड़ कर रखता है, तो कहीं पर भी वो आपको डेविएट नहीं कर रहा है आपके राय रास्त की तरफ से। लेकिन अगर एक चीज है जो अभी हम बात कर रहे थे, जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि रैप म्यूजिक है फॉर एग्जांपल,
कि आप किसी भी सॉन्ग में से मेलोडी निकाल ले तो रैप म्यूजिक हो जाता है, ठीक है ना। रविशंकर जी कह रहे थे, और वो आजकल लगता भी है म्यूजिक सुनकर, वो कहते थे जब पहले हम मौसीकी सुनते थे तो आंखें बंद करके उसका लुत्फ लेते थे, ठीक है। अब हम आंखें बंद करके आंखें खोल के म्यूजिक सुनते हैं। और फिर जो है वो अल्लाह रखा खान साहब, जो जाकिर हुसैन के फादर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की इंटरव्यू के अंदर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी वफात हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि पहले की जब हम म्यूजिशियन सुनते थे, उन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक के बारे में बात की थी कि खयाम है, नौशाद है, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, तो हम सुन के बता देते थे कि कौन म्यूजिशियन है, ठीक है। लेकिन आज सारे म्यूजिक एक जैसे ही सुनाई दे रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। इसी दिन हम कोक स्टूडियो पर भी बात करेंगे, उसमें भी काफी इश्यूज है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या सुन रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा सुने, अच्छी म्यूजिक को सुने, अच्छे कलाम को सुने, ताकि आप कम से कम डेविएट हो। मैं 2 मिनट लूंगा, सोहेल की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो म्यूजिक थेरेपी की बात हो रही थी, म्यूजिक एंड हीलिंग की बात हो रही थी, तो बाकायदा यहाँ पर ये डिसिप्लिन है वेस्ट के अंदर, जिसमें जो है वो म्यूजिक के थ्रू लोगों को हील किया जाता है, खासतौर पर जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। और अभी जो हमारे क्वारंटाइन के टाइम चल रहे हैं, इसके अंदर म्यूजिक एक हीलिंग का काम करता है। मुझे याद है जब मैं अपना PhD डिसर्टेशन लिख रहा था, तो आई वाज इंटरव्यूइंग अ रेंज ऑफ पीपल, और उसमें मैं जो है वो ऐसे लोगों को भी इंटरव्यू कर रहा था जो हमारे यहाँ सीनियर होम्स में रहते हैं, जिनको मेंटल इश्यूज हैं, जिनको कोई चीज याद नहीं रहती, जो भूल जाते हैं। जब मैं उनको विजिट करता था तो उन्हें पता था कि मैं गिरमान वगैरह भी पढ़ता हूँ, सूफियाना कलाम भी पढ़ता हूँ, तो उनके जो उनके रिश्तेदार होते थे, घर वाले होते थे, वो कहते थे कि प्लीज आप कोई गिरमान सुना दे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, ये खुद मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब मैं गिनान पढ़ता था तो वो आदमी जिसको अपने बेटे के बारे में भी नहीं पता, ठीक है, जिसको ये भी नहीं पता कि उसको क्या खाना है, वो गिनान हमारे साथ गा रहा हो। और आज मॉडर्न साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट नो एनीथिंग, बट वंस इफ दे हैव लर्नड हाउ टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, you can send them to the piano and they will play those keys. And scientifically it is proven कि जो आपके ब्रेन का जो राइट साइड होता है वो आपका क्रिएटिव चीजों को डेवलप करता है, और जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो आपका जो है वो मैथ्स को और लैंग्वेजेस को डेवलप करता है। म्यूजिक इन दोनों के दरमियान कनेक्शन लाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मैं फिजिसिस्ट नहीं होता तो मैं डेफिनेटली म्यूजिशियन होता, क्योंकि उन्होंने डे ड्रीम्स देखे थे थ्रू हिज वायलिन। तो म्यूजिक एक ऐसी साइंस है जो आपको इमोशंस, लॉजिक और साथ साथ हार्मनी एज वेल एज टुगेदरनेस सिखाती। म्यूजिक आप लोगों के साथ बजाते हैं, आपको हार्मनी सिखाते हैं। तो अगेन शेयर, आई एम कमिंग बैक टू यू कि यस, इट कैन डेविएट यू if you are not really practicing the right way of understanding music, or you are going into a music which doesn't have the right sense of ethical guidances, which is taking you away. For example, बहुत सारे गाने वॉर के गाने हैं, बहुत सारे गाने जो है वो माइग्रेशन के हैं, ठीक है ना, बहुत सारे गाने इसी तरह अल्कोहल पर भी हैं, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स आप क्या सुन रहे हैं, ठीक है। आप उसको किस तरीके से अपनी लाइफ का हिस्सा, मेरी पूरी लाइफ जर्नी जो है वो मेरे घर से शुरू हुई, क्योंकि मेरी मदर जो है वो गिनान गाया करती थी, एंड समहाउ दैट गिनान, द इन्फ्लुएंस ऑफ द गिनान ट्यून्स म्यूजिक ऑलवेज रिंग इन माय हेड एंड माय हार्ट। You can express things which are unexpressible through music.